वाला जो मैंने उस दिन जूम सेशन में बोला था। सबने जूम सेशन देखा है, रिकॉर्डेड वर्जन में भी वो है। ये सब लोग उस समय अटेंड कर रहे थे। श्रेयसी का ये क्वेश्चन था, तब मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। आई वॉन्ट टू हियर दैट आंसर। देखती हूँ कौन कहता है। ऐसा आंसर दो कि आत्मा हिले। मैंने एक हिंट देती हूँ। मैंने कहा था आप लोग सब जो आंसर दे रहे हो वो है साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉट डूइंग स्पिरिचुअलिटी, या साइड इफेक्ट्स ऑफ या बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ऑप्शनल क्यों नहीं है, ये उसका आंसर नहीं है। याद करो, दिमाग को थोड़ा सा प्रेशराइज करो। आई वॉन्ट टू हियर दैट। माँ किसको बहुत सारा हैंड्स अप है, किसको अलाउ करूं पहले? मैंने N1 N2 को बोला था। N2 go ahead. Okay, मैंने थोड़ा सा प्रेशर में आ गया, बट आई एम गोना अटेम्प्ट। सो माँ ने वो स्टोरी अपने को कई बार एक्सप्लेन भी करी है कि जिसमें उन्होंने उनका सर पानी के अंदर डाल दिया था एंड दे कुडंट ब्रीथ। Why they couldn't breathe was कि water में there was a strangulation where you were struggling to even breathe, to come up, you wanted to come up and breathe. अगर आपकी लाइफ में that kind of feeling, that kind of absence, मतलब जब presence नहीं होते, then that absence when you feel कि अब इसके beyond अगर नहीं होगा तो लाइफ खत्म है, अब इससे beyond मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा मेरा। उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंस पे हमको कृष्णा मिलते हैं। और हर दिन हम मर के अपने जो भी डे टू डे का चोर्स होता है उसमें वी आर एनीवे स्ट्रक, वी आर स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ। दैट काइंड ऑफ सोल ब्रीदिंग इज नॉट हैपनिंग। एक बार हरे कृष्णा का जाप, एक बार राधा कृष्णा का नाम लेने से that breathe happens, that सांस लेना happens for us. So how can something which is so essential कि you are able to breathe, your soul is actually able to take that breath and actually survive, can it be marked as an optional thing? वो optional हो ही नहीं सकती। Very good N2, I'm impressed. Very good. माँ एक क्वेश्चन N2 को पूछना है मुझे सिर्फ। N2 किसने किसका गर्दन डाल दिया था? वो रामकृष्ण परमहंस थे। हाँ वो मैं भूल गई। वो स्टार्टिंग में इट गॉट, मैं बताया ना, इट गॉट बिल्ड अप टू मच। मैं इनिशियली स्टार्ट की थी एंड देन इट गॉट बिल्ड अप टू मच। अभी बाकी लोगों से वी कैन आस्क। मनोज है, उसने रेज हैंड किया है, शिफाली है और योगिता भी है। Hare Krishna everyone again. So I had raised my hand before Ma put that question in the chat box. So while N2 has already given I think the most round-up answer, very close to what Ma was expecting. I think I wanted to say that spirituality, of course, it is not optional, and it's a meaningful life. The way of spirituality is a meaningful life, and it's not just one time. It takes enormous amount of effort and practice, without any prejudice or any preconceived notion. Now, there is also a slight difference between people who think spirituality is an option, who come from more of a physical or scientific mind frame, and who try to find a logic in everything. And while going through this specific post, I realized is that while science gives us a lot of knowledge based on experiments, physical and physiological examples, facts, numbers, etc., spirituality is the one that gives us a lot of knowledge
much beyond what science could explain, and also gives a perspective and a direction that we could follow and make it a way of our life for the ultimate fulfillment. Through science, we only know what has been experimented, but through spirituality, there is no limit for what we could gain in terms of knowledge and understanding. And Ma also brilliantly articulated in her post that man's selfishness is one of the biggest root causes for most of the issues. My own selfishness is a root cause for my pains, my relationships, my illness, my stress. We are less than a minute. Can we just log back in and then we continue with your discussion? मिलती है स्पिरिचुअलिटी करने से मन की शांति, स्पिरिचुअलिटी करने से ऑब्स्टेकल्स हटते हैं, स्पिरिचुअलिटी करने से रिलेशनशिप ठीक होता है. ये सारे रीजन देने पड़ रहे हैं हमको वो चीज के लिए. ये जिस तरह मैं वही सुनना चाहती थी कि हम उनसे दूर किस तरह जी रहे हैं. I mean, how can this be possible? और क्या ये हमारी आत्मा हमसे पूछती नहीं है? और हम इसको we are giving a second thought कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल करूंगी. आज मेरे घर पे ये लोग आ रहे, आज मुझे ये काम करना, आज मुझे वो करना है, मैं बुढ़ापे में करूं, मैं इसमें करूं. कि what is this? जहां से हमारा सोर्स, मतलब जो हमारा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां से है वो हट जाए तो हम अभी के अभी मर जाए. हम जिंदा क्यों हैं? हम जिंदा है बिकॉज ऑफ द डिवाइन स्पार्क इन आवर बॉडी, जिसे हम आत्मा कहते हैं. आत्मा क्या है? आत्मा है अ स्पार्क फ्रॉम कृष्णा. अगर वो हमारे शरीर से निकल जाए, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी. और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज नहीं हो पा रहा हमसे, हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे, हम 4 साल बाद करेंगे, मेरा बेटा थोड़ा सेटल हो जाए, मेरा ये वाला काम चल रहा वो जरा ठीक हो जाए, उसके बाद करेंगे. आई मीन व्हाट? ये जागरूकता लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं. ये चाहिए मुझे, वो पैशन, वो जुनून, वो इश्क, ये दिखाओ, ये फील करो अपने अंदर, तब आप जिंदा हो. वरना आप में से कोई जिंदा नहीं है. आपको अगर लग रहा आप जिंदा हो, आप में से नहीं. आप पता है क्यों फिर भी सांस ले रहे हो? क्योंकि वो क्रिएटर आपसे प्यार करता है, इसलिए आप अभी तक सब लोग सांस ले रहे हो. ये गलतफहमी में मत रहो कि आप जिंदा हो बिकॉज आपकी कोई महानता है. वो क्रिएटर इररिस्पेक्टिव ऑफ आप उससे प्यार करते हो नहीं करते हो, वो चींटी से लेके हाथी तक को खाना प्रोवाइड करता है, सबका ध्यान रखता है, वो प्यार करता है हमसे. सो हमें, हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी ऑप्शनल नहीं है. ये फीलिंग अपने अंदर लाओ. किस किस को समझा आज? क्योंकि मैंने तो वो पहले बार भी बताया था. वो जूम रिकॉर्डिंग का नंबर बताओ यार कोई, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू हियर एटलीस्ट दैट फ्रेगमेंट. वो फ्रेगमेंट एटलीस्ट आप सुनो. ये खुद से आना चाहिए. इतने सारे लॉजिकल आंसर्स की जरूरत नहीं. भगवान के सामने लॉजिक का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. वो क्या करेंगे आपके लॉजिकल आंसर से? वो आपका प्यार देखेंगे, दैट्स इट. वही देखेंगे. और ऐसा भी नहीं कि आप प्यार नहीं करोगे तो वो मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है. पर अगर आप प्यार करोगे आप जी उठोगे. अभी जो आपको गलत फहमी है कि आप जी रहे हो, आप नहीं जी रहे हो. एक्चुअली आप जीना शुरू करोगे जब आप कृष्णा से प्यार करने लगोगे. सो ब्रिंग दैट लव इनसाइड यू. अब आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ खुल रहा है, कुछ ढक्कन खुल रहा है, कुछ लेयर्स हटे, फील हो रहा, कुछ हटा. जेन्युइनली ऑनेस्टली बोलो कि अभी भी आप धप्पू स्टेट में हो. स्पिरिचुअलिटी तो करना पड़ेगा, अब इतने बार बोला जा रहा है. तो थोड़ा डेप्थ में गया. नहीं, मैं थोड़ा डेप्थ में गया तो मैं आप सबसे एक साथ ही आंसर चाह रही थी. कहाँ अटके हुए हो यार? अभी भी इसमें अटके हुए हो कि स्पिरिचुअलिटी इसीलिए करना है, इसलिए वैसे करना है. स्पिरिचुअलिटी करना है बिकॉज इसके लिए आपने जन्म लिया है. और कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है. दिस इज योर आइडेंटिटी. ये याद करो आप. न्यू मेंबर्स, भारी था आपके लिए? कुछ समझा? प्लीज ऑनेस्टली बताइए. दिस इज अ डिस्कशन सेशन. भगवत गीता में जो बोलना था मैंने बोल दिया. आनंदिता ऑलरेडी उसको रिविजन करा रही है. बट ये हमारा एक डिस्कशन है, आपको बोलना पड़ेगा. ट्राई करिए.
Yes, ma, understood. माँ मैं बोलूं? हाँ बोलो। माँ आप समझाते हैं कि हमारा जन्म ही इसीलिए हो, इतने अपने जन्म 84 लाख करोड़ योनियों के बाद जो मनुष्य का जीवन मिलता है सिर्फ इसीलिए मिलता है कि इसमें ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और कुछ में तो कर नहीं सकते हैं। तो इसमें हमको जीवन को समय नष्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि सिर्फ हमको भक्ति करना है, वो भी भगवान से प्यार करना है। क्योंकि हमारा हाँ, अब ये वही बात है। तो जब हमारा गोल क्लियर है, ये गोल को रखकर हम बाकी का काम करें। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप हिमालय चले जाओ, आप अपने कार्मिक ऑब्लिगेशंस पूरे मत करो, आप अपने फैमिली का टेक केयर मत करो, ये कभी नहीं। किस तरह प्यार करना है? रामकृष्ण परमहंस ने अपने उसमें बुक में लिखा है कि जिस तरह से एक मेड सर्वेंट आपके घर में आके काम करती है, पर उसका ध्यान उसके अपने बच्चे के तरफ होता है या अपने लवर के तरफ होता है, बस वो काम करके चली जाती है, उसका पूरा ध्यान रहता है पता नहीं मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा या मेरा लवर क्या कर रहा होगा। तो उस वे से रहना है हमें, कि हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, पर हमारा तन मन धन शुड बी फिक्स्ड ऑन कृष्णा। हाँ। क्यों? क्योंकि वहां जाना है, वापस जाना है वहां। तो जब हमारा ध्यान उधर रहेगा तो क्या हम अपने एवरीडे लाइफ में कंप्लेन करेंगे कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इसने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, इसने मुझे आज देख के हाय नहीं बोला? क्या हम करेंगे? ये सब करना है हम? खुद खुद अपने आप को एक बार झंझोड़ के हिलाकर बोलो, क्या हम ये करने आए हैं? मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा लवर ने मेरे को छोड़ दिया, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मेरी सास मेरे से झगड़ा करती है, मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा, कलीग को दे रहा, क्या हम ये करने आए हैं? मेन चीज को छोड़कर हम क्या फालतू की चीजें कर रहे हैं? अगर हमारा ध्यान है कि अब बहुत हो गया, गलती का एहसास हो गया, हम बेवकूफ थे जो हम कृष्णा को छोड़कर आए, हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं, अब वहां वापस जाना है, ध्यान कृष्णा के तरफ है, राधा माँ के तरफ है, तो ये आसपास जो भी कुछ हो रहा वो क्या फर्क पड़ेगा? सुबह के सेशन में हरिदास ठाकुर को क्या फर्क पड़ा? उनके सामने एक ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट आके बैठी थी, क्या उन्हें फर्क पड़ा? ये एकाग्रता, ये फोकस, ये लाना है लाइफ में। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑप्शनल, स्पिरिचुअलिटी मीन्स लव फॉर गॉड, रिलीजन इज पाथ टूवर्ड्स गॉड। 1000 पाथ हैं, आपका गोल एक है। अगर आपको स्कूल जाना है, आप राइट से जंगल के रूट से जा सकते हैं, आप लेफ्ट से सड़क लेके जा सकते हैं, आप उड़ के जा सकते हैं, आप तैर के जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हो, लेकिन जाना स्कूल है। उसी तरह कृष्णा के पास जाना है, उसकी अलग अलग रास्ते हैं, उन रास्तों को कहा जाता है रिलीजन। एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स लव फॉर गॉड, प्यार करना उनसे। ये सब लोग भूल चुके हैं और सिर्फ अभी रिलीजन को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, रिलीजन के लिए मारकाट हो रही है, मेरा रिलीजन अच्छा, तेरा रिलीजन बुरा, रे यही चल रहा है। किसी का भी रिलीजन अच्छा बुरा में फंसना है क्या? प्यार कैसे करना है भगवान को, कि आप मुझे गोद में उठाओ या जमीन पे पटको, मेरा रोम रोम आपसे फिर भी प्यार करेगा। नहीं फर्क पड़ता आप पलट के देखते हो कि नहीं प्रभु, नहीं फर्क पड़ता आप हमसे प्यार करते हो कि नहीं, कि आप हमारा ख्याल रखते हो कि नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, एंड ऑफ स्टोरी, और करती रहूंगी। ये है इश्क, ये अंदर फील करिए, आपको कुछ और चीज से मतलब नहीं रहेगा। जब जब आप इस चीज से डाइवर्ट होंगे, तब तब लाइफ के सारे परेशानियां बड़े बड़े पहाड़ जैसे लगेंगे, और जब आप अपने इश्क में आगे बढ़ेंगे, तभी आसपास के पहाड़ भी आपको छोटे छोटे कंकड़ ऐसे जैसे लगेंगे। ये अब जब फील करने लगो, तब आप सोचो कि अब आप सही राह पे हो। अदरवाइज आप कितना घंटी बजाओ, कितना अगरबत्ती जलाओ, कितने नारियल चढ़ाओ, कितने माला चैंट करो, अगर ये सिंपल चीज आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप ये सब कर क्यों रहे हो, तो आपकी लाइफ, आपका इनकारनेशन वेस्ट, इट्स कंप्लीट वेस्ट।
और आपने बहुत ज्यादा कर्मा यूज करके आप आज का ये जूम सेशन अटेंड कर रहे हो। तो अगर अभी भी आप ना समझ पाओ तो आपका वो सारा कर्मा भी वेस्ट। मैं खीला डायरेक्ट ठोक रही हूँ दिमाग में आपके। अभी तो उठ जाओ, जाग जाओ, अपने नींद से उठो और समझो कि क्या करना है। किसके अंदर अब ये वाइब्रेशन फील हुआ? ये जो मैंने अभी सारी बातें बोली, किसके अंदर झंझनाहट फील हुई? कोई बता सकता है? किसी की आत्मा हिली? कौन है ये जिसकी आवाज नहीं आ रही है? चंद्रिका चंद्रिका का नेटवर्क। अच्छा चंद्रिका, चंद्रिका और टाइप कौन? कर दो। बस चंद्रिका को फील हुआ और कोई नहीं? नहीं माँ, पूरी बॉडी सुन्न हो गई है। ओके योगिता। नहीं और माँ, अभी मैं यही कुछ हाँ, सबको मिका समझ में हाँ, बिल्कुल आ नहीं गया यार। ठीक है, आप लोग चैट में लिख दो, चैट में लिख दो, वो बेटर है। चैट में सब लोग पढ़ो। न्यू मेंबर्स में से स्वाति अरोरा ने लिखा है। आई थिंक स्वाति अरोरा इज विथ हर हस्बैंड आल्सो मे बी, सो मे बी उनका भी यही फीडबैक होगा। बाकी तो ओल्ड मेंबर्स हैं। इट्स गुड। ठीक है, शुभांगी भी न्यू मेंबर है। ठीक है, तो आत्मा को टच हुआ ना, ये वाली फीलिंग कभी भूलना नहीं है। अब इस रास्ते से हटना नहीं है। ठीक है, अब कभी नहीं हटना इस रास्ते से। आपको पूरी दुनिया कुछ भी बोले, उनको नहीं पता, उन्होंने इतना कर्मा इन्वेस्ट नहीं किया ये जानने के लिए, आपने किया है। ओके ठीक है आनंदिता, सॉरी फॉर हाईजैकिंग योर सेशन अगेन, प्लीज कंटिन्यू। माँ प्लीज आप सॉरी मत बोला करो। We go into a trance only when you are there and you, तुम इसको प्यार नहीं कर रही हो, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या, मतलब वो जो तुमको समझ कैसे नहीं आ रहा, वो जो होती है ना, इट इज लाइक दैट, इट इज नॉट एट ऑल अग्रेशन। मैं ये समझ सकती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ आप माँ से क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हो। है तो सब कुछ तो पता है। फिर तो वो जो होती है ना, इट इज लाइक दैट कि तो है कृष्णा, क्या रहे हो तुम लोग, क्या इधर इधर गोल गोल घुमा रहे हो, बोल रहे हो। सो माँ, इट इज नॉट एट ऑल डांट, इट इज नॉट एट ऑल अग्रेशन, इट इज ब्यूटीफुल। एंड जब आप आके ऐसे बोलते हो ना, वो फुल ऐसे ढक्कन खुलता है और फिर ऐसे डाउनपोर होती है एनर्जी। एंड इट वॉज एक पॉइंट था जब आपने बोला ना कि क्रिएटर से ही वो स्पार्क आई है, हम उसी से ही हैं, वो नहीं तो हम लोग को है ही नहीं। वो जो पार्ट आप बोले ना, वो एकदम धड़ से वो कनेक्शन, इट वाज अ ह्यूज फ्लो ऑफ एनर्जी, ऐसा हुआ। एक्चुअली क्या है ना, बेचारे सब लोग अपने एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से ज़ॉम्बी स्टेट में चले गए हैं। इतने ज्यादा परेशान है कि उनको बस लगता है बस मेरी परेशानी से मैं निकल जाऊं। उनको नहीं पता कि पीछे 20 खड़े हैं मुश्तंडे एकदम परेशानी लेकर कि ये वाला खत्म हो तो मैं नेक्स्ट आता हूँ, अच्छा ये वाला खत्म अब मैं नेक्स्ट आता हूँ। सो परेशानी मतलब मरते दम तक, जब तक जीभ ऐ करके नहीं निकल जाएगी तब तक एक ऑलरेडी है परेशानी फिट वहां पे होने वाले के लिए। तो उससे निकलना एम ही नहीं है, परेशानी से निकलना एम ही नहीं है। परेशानी है वो छोटा सा खिला जो आपको पिंच करके आप सोचोगे कि अरे मुझे इस रास्ते से नहीं जाना है, ये रास्ते में खिले हैं। तो मतलब हमको करेक्ट रास्ते पे रखने के लिए परेशानियां होती है। परेशानियों को कभी लाइफ में हाईलाइट मत करो।
आप कृष्णा को पकड़ो, परेशानियां नोटिस ही नहीं कर पाओगे। होंगी परेशानियां बट वो आपको इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगी। यही है इसका वो मतलब। आप ये सोचो, वो अनूप जलोटा का गाना सोचो कि है हाथ तो बस वो श्याम का वंदन किया करे, मतलब हमारा जीभ बस उनका भजन किया करे, हमारी आंखें भी उन्हीं को देखा करे, मेरे बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन बस उनके लिए करे। और उनके लिए करना या उनसे प्यार करना मतलब सुबह से लेकर रात तक सिर्फ उनकी भजन करना नहीं होता है। अगर आप प्यार करते हो भगवान से तो उनके डिवाइन प्लान में आपको पार्टिसिपेट करना है। एसबीसी उनका डिवाइन प्लान है क्योंकि उनकी वाइफ है मदर अर्थ, लक्ष्मी माँ इज मदर अर्थ। आप मदर अर्थ के लिए कुछ कर रहे हो मतलब आप कृष्ण भगवान के लिए कर रहे हो। घर बैठे बैठे आप किसी का दुख हटा रहे हो मतलब वी आर वन विथ गॉड, वन विथ ऑल। मतलब वो फिंगर वाला कंसेप्ट, मैं अपने ही उंगली को, अपने ही एक फिंगर से दूसरे फिंगर को अगर नोचूं तो मेरे पूरे हाथ को और पूरे बॉडी को तकलीफ होगी। तो कोई और तकलीफ में है तो उसका तकलीफ में नहीं हटाऊंगी तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती। ये समझो, प्यार करना है तो प्रॉपरली करो प्यार। आपके आसपास के लोग दुखी हैं, आप किस तरह खुश रह सकते हैं? तो अपने औकात के हिसाब से दूसरों का दुख हटाओ। और क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है अभी, तो प्रॉब्लम ये है किसी को बोलने जाओ तो वो आपको 4 बातें सुना के भगा देगा। ओ हमको सब मालूम है, मेरे को मत बताओ। हाँ कृष्णा, हाँ वो मालूम है, हमने सीरियल में देखा है गोपी के साथ डांस करते वो। मैं तो बचपन से स्पिरिचुअलिटी करता हूँ। अरे हमारे घर में होम हवन सब कुछ होता है, तुम क्या आके मुझे आज बता रहे हो स्पिरिचुअलिटी? तो ये ना करके इट्स मच बेटर कि हम एसबीसी में पार्टिसिपेट करें, डायरेक्ट मदर अर्थ का वाइब्रेशन ही चेंज कर दे, वही चेंज हो जाएगा तो सबकी अक्ल वैसे ठिकाने आ जाएगी। दिस इज इजीएस्ट वे एंड लेस कंट्रोवर्शियल। इट्स लेस कंट्रोवर्शियल क्योंकि आपको जो फायदा मिला है ये करके आपका मन में बहुत इच्छा होगी कि अरे आपके आसपास में आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स को ये बताना। और जब आप देखते हो स्लम्बर में है ना, तो देयर इन डीप स्लीप, आपके अंदर वो ब्लड बॉइलिंग स्टार्ट होता है, खून खोलना। अरे इसको क्यों नहीं समझ रहे, इसको क्यों नहीं समझ रहा, उसको हिला हिला के एकदम समझा दूं। लेकिन ये मैं भी करती हूँ और मुझे उसके बाद बहुत वाट लगती है मेरी। सो वो ना करके इट्स बेटर ग्रुप तक लेकर आओ, एसबीसी तक लेकर आ जाओ, बाकी कोई प्रवचन ना दो। बोल तुम जो करते हो ना एग्जैक्टली वही वाला है यहाँ पे, वही करना है, आओ तो। सो माँ एसएसआई भी कैसे मिस कर गए? हाँ, आज मेरा घमासान हुआ किसी के साथ, उस पर्सन ने एसएसआईपी मिस कर दिया तो वो अलाउड नहीं है फॉर मतलब एसबीसी के लिए, वो इंसान क्वालिफाई नहीं किया। मुझे लगा 1.5 मिनट लगता है एसएसआईपी करने को, एक इंसान ये कैसे नहीं कर सकता है। फिर समझा मैं तो सिर्फ फोन हूँ, तो ये मेरे लिए टेस्ट था, मैंने टेस्ट को ही उड़ा दिया बॉम्ब मार के। तो पास में तो दूर की बात, मैंने टेस्ट को ही उड़ा दिया। तो सो मेरे जैसे भी मत करो। दिस इज बिकॉज इफ यू आर नॉट रेगुलेटिंग योर पैशन तब ये चीज होती है। सो यू हैव टू ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ योर ट्राइब। आप लोग मेरे ट्राइब हो, मैं आपके सामने ये एकदम खुल के अपना इश्क जाहिर कर सकती हूँ कृष्णा के लिए। लेकिन किसी और के सामने मुंह खोलने से उस पर्सन के साथ मेरा भयंकर हो गया, जाने दो, क्या कर सकते। हाँ, भगवान उसका भला करे ना, ये कच्चा आम है तो पकने में टाइम लगेगा। लेकिन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि घर बैठे बैठे आप एसबीसी कर सकते हैं। एटलीस्ट जितने सारे लोग आप हो अभी सेशन में, डोंट मिस एसबीसी, सच में मत करो। हम लोग देखते हैं ना कि क्या होता है एसबीसी का डोनेशन के बाद, क्लेयरवाइंट से हम लोग देखते हैं। हम लोग इससे आपको बता सकते हैं कि द वे मदर अर्थ का वाइब्रेशन चेंज होता है। और लास्ट एज वाले एसबीसी में सनत कुमार खुद नीचे आए थे। सनत कुमार इज लॉर्ड ऑफ गॉड, मतलब अर्थ प्लैनेट के वो हेड हैं सनत कुमार जी, वो खुद आए थे। और एसबीसी के लिए कितने सारे हमारे कार्मिक लोन्स का भी हमारा फटाफट नलीफाई होने के चांसेस मिल रहा है, न्यूट्रलाइज होने का। तो ये डीप रिसर्च हम पे छोड़ दो, हम बैकग्राउंड का काम करते हैं, आप बस फॉलो करिए जो हम आपको बोले और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
आप बस करिए, 2-3 हफ्ता करिए, ना चेंज हो आपके लाइफ में, आप छोड़ दीजिए। ये इतने सारे लोगों के लाइफ में चेंज हुआ है, फीडबैक्स पढ़िए। सब लोग तो फीडबैक लिखते भी नहीं, लेकिन टिके हुए हैं, मतलब चेंज तो हुआ है। ट्रस्ट दैट प्रोसेस एंड डू इट। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है प्लीज, और टोटल नहीं किया प्लीज कर दो। जो हमारी जो बैकग्राउंड टीम होती है उनको बहुत लेट हो जाता है, और फिर मुझे उसको पोस्ट करने में बहुत रात हो जाती है, मुझे नींद आ जाती है बहुत जल्दी। सो दया करो हम पे, आप सब लोग प्लीज अपना टोटल कर दीजिए, प्लीज अपडेट कर दीजिए। अभी लॉक हो जाएगा, हो भी गया है, 4 बजे लॉक हो जाता है। अच्छा आनंदिता कंटिन्यू कर, वरना मैं तो बोलती रहूंगी। प्लीज जो भी है बचा कुचा खत्म कर बोल के। अनिंदिता सोच रही है कि माँ बंद नहीं होना चाहिए, माँ बंद नहीं होना चाहिए। है ना? प्लीज माँ, और थोड़ा दिल मांगे मोर। इट इज नेवर, वो क्वेंच नहीं होती है फर्स्ट। नहीं, और क्या क्या बोला मैंने बीजी में, जरा बोल, और क्या क्या बोला? मैं तो याद ही नहीं मैं क्या क्या बोलती हूँ। माँ यही सारी चीजें थी, वही रिलेशनशिप वाला पॉइंटर्स था कि कैसे हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, और वो बास्केट थ्योरी भी थोड़ा बहुत। सो इट वाज वही है कि आप जो सारा बोलते हो ना, वो पूरा इन शॉर्ट एंड कंसाइज आपने इसमें दिया हुआ था BG26 में। एंड माँ सबसे इम्पोर्टेंट वाला था, आपने एक अफर्मेशन कराई थी, एंड वो अफर्मेशन में कृष्णा ने भी देखा था कि हाउ वाज द एनर्जी डाउनपोर, उसने कलर्स भी ब्यूटिफुली बताया था तब। और एक करवाया था फॉरगिवनेस वाला, फॉरगिवनेस माँ लाइव वाला हमको कराओ प्लीज। मैंने रिकॉर्ड करके रखा है वो लाइव सेशन से, बट और नहीं वो वाला चला ना, वो उस समय का उसमें हाँ, वही चला। उसमें 2 स्टेप, हाँ उसमें आपने जो पावरफुल में सारे स्टेप्स है, इसमें सिर्फ आपने 2 स्टेप्स कराए थे, तो वो पार्ट मैं प्ले करूं फिर? कर मैं इसको रिकॉर्ड करूं कि पॉज कर दूं ये पार्ट? तो पॉज कर दीजिए। आप लोगों को अगर बाप रे बिजली कड़क रही मेरे यहाँ। सो इससे क्या हुआ कि आप लोगों का जो कार्मिक अकाउंट, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट जो बहुत जन्मों से चले आ रही है, आप ऐसे घर पे बैठ के फॉरगिवनेस करते हो तो शायद 1% नेगेटिव कार्मिक अकाउंट कम होता है। आप चैंटिंग डोनेट करते हो तो और 1% कम होता है। इससे अ ह्यूज परसेंटेज गया। नितिका कितना परसेंटेज नेगेटिव कार्मिक अकाउंट न्यूट्रलाइज हुआ, देख जरा। माँ सबका जो उनका मतलब ऑन एन एवरेज अबाउट 63 to 70% न्यूट्रलाइज हुआ। हाँ, और so ये this is the सबका importance of ओवर life. 100 था। हाँ मतलब वो अक्रॉस ऑल इनकारनेशंस, अक्रॉस ऑल प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस उनका ये न्यूट्रलाइज हुआ है ऑन एन एवरेज। अच्छा, मैं एक काम करूंगी आपसे, लेट अस रीजॉइन फर्स्ट, फिर मैं बताती हूँ। और मेरे सामने से एकदम खतरनाक बिजली मतलब दिख रहा है नीचे गिरते हुए। ब्यूटीफुल व्यू माँ यहाँ पर पुणे में तो। हाँ, पुणे में ये बिजली कड़क के बारिश हो रही है। ओके 58। ओके 58 पीपल है, तो आई जस्ट से बेसिकली जब मैं सेशन ये अटेंड करूंगी, आई विल ट्राई कि मैं बीच में या एंड में या स्टार्टिंग में एक शॉर्ट फॉरगिवनेस कराऊं, बिकॉज एक सेशन में जब हम इतने सारे लोग मिलके करते हैं उसका डेफिनेटली उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अगर हम सच में वीई या गोलक पहुंच के ये कर पा रहे हैं तो ये बहुत फास्टर वे होगा हम सबका जो पेन है उससे निकलने के लिए। तो अभी एक और क्विक चीज हम करेंगे, जस्ट 2 मिनट का वी विल डू। तो एक पर्सन को पकड़ो सब लोग जिसके साथ आपका बहुत नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, मतलब जिससे आपको बहुत पेन मिलता है या जिससे जो आपको बहुत परेशान करता है, उस इंसान को अपने सामने याद करना है अभी। और जस्ट 2 मिनट वाला एक चीज करते हैं एंड वी विल सी। लेट्स अज्यूम दैट नेगेटिव कार्मिक अकाउंट विद दैट पर्सन इज 100, ऑन अ स्केल ऑफ 100। तो नितिका ये करने के बाद बताना वो 100 से कितना रिड्यूस हुआ। जी मैम।
भगवान भी खुश है आज लग रहा है। All the higher बहुत beings and everybody are active at the session ना, like वो हैं अभी session में। ओके ठीक है चलो। हाँ, अगर 100 डालने वाला कोई ना हो तो क्या करूं? किसी को माफ करना है। आप अपने फ्यूचर इनकारनेशन के लिए जिनको आपने रखा है ना अब उसमें उनको बुला लीजिए। मैं इस लाइफ में ऑल क्लियर हो गया तो हाँ तो फ्यूचर इनकारनेशन वाले होंगे ना, ऐसा थोड़ी हम सब एक प्लेट में थोड़ी ना लेते हैं। जब हम शादी में जाते हैं खाना खाने को तो पहले हम पुलाव लेंगे, गोभी लेंगे, पनीर लेंगे, बाद में स्वीट डिश भी रहता है ना, प्लेट में जगह नहीं रहती। नेक्स्ट इनकारनेशन भी आप रखे होंगे ना किसी किसी को, उनको भी अभी बुला के कर लेना, रिस्क लेना ही नहीं है। ओके सो याद करो जिसके साथ आपको ज्यादा प्रॉब्लम है उसके आंखों में देखो, बोलो कि आई एम इन्वोकिंग दैट द सोल ऑफ दैट पर्सन। बोलो मे द सोल ऑफ दैट पर्सन कम इन फ्रंट ऑफ मी। राधे कृष्णा। मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार थी, आप सिर्फ एक चैनल थे। आपके चैनल रूपी व्यवहार के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। आप ये पेन नहीं देते तो कोई और देता। हमने यही पेन यूनिवर्स को दिया था जो हम तक वापस आया। इस रियलाइजेशन के साथ हम अपने हर एक सेल, आत्मा, मन, शरीर से नतमस्तक होकर आपसे माफी मांगते हैं। हमारे दिल में आपके प्रति कोई ग्रज नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई दुख नहीं है। आप ऑब्लाइज नहीं हो इन रिटर्न हमारे लिए कुछ भी करने के लिए। आई एम सेटिंग यू फ्री। दिस नेगेटिव कार्मिक अकाउंट इज ओवर, never to return back again. If it returns, it can manifest only in the form of a positive karmic account. इसके बाद अब उनको तो माफ किया, अब हम माफी मांगेंगे। मैंने जाने अनजाने में आपको जो भी दुख दिया उसके लिए मैं हनुमान पोज में बैठकर आपसे माफी मांगती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मेरा एंगल टेढ़ा था, मेरा सोल स्ट्रेंथ कम था, मेरे अंदर प्यार की कमी थी, मैं दिव्यता से जुड़ी हुई नहीं थी। I was not connected with divinity, जिसकी वजह से मुझसे ये गलती हो गई। I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. मुझे माफ कर दीजिए। आपका भला हो, आपका अच्छा हो। मैं एक भी नेगेटिव थॉट आपके प्रति नहीं भेजूंगी। मेरे तरफ से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आपके प्रति जाएंगे। और जो नुकसान मेरे वजह से आपका हुआ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भगवान से कि वो आप मेरे ही कर्मा को यूज करके उस नुकसान का भरपाई कर दीजिए, जैसे कि और हमारे बीच कोई नेगेटिव इंटरेक्शन फ्यूचर में होने के भी कोई चांसेस ना रहे। पूरी आत्मा, पूरे दिल से, पूरे हर एक सेल से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। राधे कृष्ण। N2 दे कभी। अगर पहले 100 था तो नाउ इट्स कम डाउन टू लेस देन 30। ठीक है, वेरी गुड। और आप लोगों को भी हल्का फील होगा, ये इटसेल्फ शोज कि कुछ हुआ। अगर आपको हल्का फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, मतलब डेफिनेटली आपका पेन कम हुआ। ऐसा कोई है जिसने ये अभी करके उसको हल्का फील हो रहा? कोई न्यू पर्सन है? पुराने वाले तो रिसेप्टिव है, मैं जानती हूँ। कोई न्यू पर्सन है? यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। नहीं लिखा कोई।
क्षमा आंटी। हाँ, चैट में काफी सारे लोगों ने लिखा है, वैशाली जी, अनन्या जी। राधे कृष्ण माँ, मैं रमा जैन बोल रही हूँ माँ। हाँ रमा जी बोलिए। माँ मैं बहुत रो रही हूँ माँ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये आपका क्लेंजिंग प्रोसेस है रमा जी, रो लीजिए, आपके अंदर से सारा दुख दर्द निकल जाएगा, बहुत लाइट फील होगा। जी माँ। हम ये दर्द दिल में पकड़े रहते हैं ना, वही जी। दर्द है, और उस पे बहुत ढक्कन लगा के रखते हैं, तो मैंने वो ढक्कन खोल दिया है। आज बह जाने दीजिए सबको, आप अपने आंसू आंसू पे बहने दीजिए। मैं हूँ आपके पास, आप देखेंगे, मुझे फील कर पाएंगे, मैं आपको हग कर रही हूँ, आप ही के पास हूँ। जी माँ, बिल्कुल महसूस हो रहा है माँ। मुझसे लिपट के रो लीजिए, माफ कर दीजिए, इट्स नॉट वर्थ इट। हमारा गोल क्लियर है ना, कहाँ जाना है। ये सब लेकर पत्थर कंकड़ बड़े बड़े हम अपने कंधे पे लेके घूमेंगे तो जल्दी गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। इन्हें रिलीज कर देना है, इन्हें अभी पीछे छोड़ देना है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जी गया। माँ, जी जी माँ, जी जी, राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण। मैंने सबका अभी कमेंट पढ़ा, वेरी गुड। जिनको ज्यादा फील नहीं हुआ, आप लोगों को थोड़ा सा और मुट्ठी खोलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर अगर गोली लगी है और डॉक्टर आपका वो गोली निकाले, तो आपको डॉक्टर के सामने सरेंडर करके लेटना पड़ेगा, तभी डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएगा। आप अगर एकदम उस पे 4-5 लेयर्स ऑफ कपड़ा लेकर उसको छुपा के रखेंगे, टाइट करके बैठे रहेंगे, तो डॉक्टर किस तरह से करेगा। तो जब भी मैं कुछ बोलूं, मुझे आप अपना डॉक्टर समझिए और मुट्ठी खोल दीजिए, जस्ट रिलैक्स, हो जाने दीजिए इस प्रोसेस को। जब ऑपरेशन होता है तब दर्द होता है, लेकिन एक बार वो गोली शरीर से निकल जाती है तब आराम हो जाता है। तो वो प्रोसेस पेनफुल है, पर उसके बाद सब सही है। और अगर उसको ना निकाले तो अंदर सेप्टिक हो जाएगा, अंदर टॉक्सिन भर जाएगा, पॉइजन फैल जाएगा शरीर में। तो ये बात आपको समझना होगा। तो ये जब भी लाइव सेशंस में ये सब होता हो ना, तो लेट इट हैपन, उसको रोकना नहीं। उस समय सारा काम सब कुछ से कट ऑफ करके पूरे फोकस से आपको बैठ जाना है, तब कुछ नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, एग्जैक्टली मैं जो कह रही हूँ वो करते रहना है। अभी जो रमा जी के साथ हुआ, सोचिए उन्होंने कितने सालों से शायद पकड़ के रखा होगा कोई पेन अपने अंदर, वो इस तरफ फूट फूट के बाहर निकल रहा है। ये जब उनका पूरा निकल जाएगा ना, तब वो इतना लाइट फील होगा उनको कि जो उन्होंने इतने सालों तक एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। सो इट्स अ क्लेंजिंग प्रोसेस। ये आप लोगों के गुड कर्मा के वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डोंट लूज इट। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल द फीडबैक्स। आनंदिता, यू कैन कंटिन्यू। यस मैम, ये वाले सेशन में आपने एक अफर्मेशन कराया था, तो उसको भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। एंड इवन इस अफर्मेशन के वक्त भी कृष्णा ने फीडबैक दिया था कि जो कलर्स आए थे एंड द प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस, तो ही हैड गिवन दैट फीडबैक एज वेल। तो वो 3 बार सेपरेटेड होके था, तो मैंने उसको कंसाइज करके एक पार्ट में ही कर दिया है। तो हम लोग को ये वाला पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, एंड ये बहुत ही पावरफुल वाला है, तो इसको करते हैं। आई जस्ट प्ले इट। स्ट्रांग हो जाता है।
डिवाइन कॉर्ड स्ट्रांग हो जाता है तो फिर हमारा कनेक्शन विद आवर हायर सोल, विद आवर हायर बीइंग्स, विद आवर स्पिरिचुअल मास्टर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो हमारे लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हैं, उसका सोल्यूशन या उसका गाइडेंस जो हमारे हायर बीइंग्स, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर कंटिन्यूसली देते रहते हैं, पर वो हमारा क्लोज्ड क्राउन चक्र और सहस्त्रार चक्र या क्लोज्ड स्पिरिचुअल कॉर्ड के वजह से हम वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम गलत करते हैं उस सिचुएशन में। तो वो इशू सॉल्व हो जाता है, इससे हमारा ऑरा बड़ा हो जाता है। जैसे ऑरा बड़ा हो जाता है तो हमारे जैसे कि आप एक फैन को देखो, अगर वो स्लो स्पीड में फैन अगर घूम रहा है उसके तरफ आप एक पत्थर फेंको तो फैन पे डेंट हो जाता है। लेकिन वही अगर एक फैन बहुत जोर से स्पीड में घूम रहा है, उसके तरफ आप पत्थर फेंको तो पत्थर छिटक के दूर चला जाएगा। क्यों? बिकॉज वो वाइब्रेशन की वजह से। तो आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया, आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे, मच फास्टर वाइब्रेट करोगे। तो किसी के नेगेटिव थॉट्स, कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी, कोई भूत प्रेत, कोई डिजीज्ड एनर्जी आपके अंदर इतने इजीली नहीं घुस सकती। मतलब बेसिकली आप अपने अराउंड एक प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट कर देते हो जस्ट बाय ओपनिंग अप योर हार्ट चक्रा। सा हार्ट चक्रा खुलता है तो क्राउन चक्रा खुलता है, क्राउन चक्रा खुलता है तो स्पिरिचुअल कॉर्ड बड़ा हो जाता है, स्पिरिचुअल कॉर्ड बड़ा हो जाता है तो डिवाइन एनर्जी अपने आप ऊपर से आने लगती है, डिवाइन गाइडेंस आने लगता है, हमारा ऑरा बड़ा हो जाता है, हमारे अंदर के डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो जाते हैं, बाहर से कुछ भी नेगेटिव चीज हमारे अंदर घुस नहीं सकती है। सो बेसिकली हमारा अच्छा ही होता है। ये गड़गड़ गड़गड़ रेलगाड़ी जैसे बोलते रहना है, तो फिर आप देखोगे आप ये कभी भूलोगे नहीं। और ये सबसे इजी तरीका है स्माइल करने से। स्माइल करोगे आपका हार्ट चक्र खुल जाता है। जो हार्ट क्लोज रखते हैं 33%। कितना? 33 हो गया अभी ग्रुप एवरेज। अब पहले कितना था? 17 से 27%। अच्छा बढ़ गया। अच्छा मेरी रेलगाड़ी से भी बढ़ जाता है। ओके ठीक है, मैं तो हमेशा रेडी हूँ। मैं तो यही बोलते रहती हूँ। सो बेसिकली आप स्माइल करोगे, और स्माइल आप तभी कर सकते हो जब आपके थॉट्स इन अलाइनमेंट हो। थॉट्स आपके तभी अलाइनमेंट में होगा जब आप स्पिरिचुअल लेक्चर सुनोगे, आप सेशंस अटेंड करोगे, आप बीजी सेशन सुनोगे, आप सारे प्रैक्टिसेस करोगे, आप एसबीसी में पार्टिसिपेट करोगे, तभी आपके थॉट्स अलाइनमेंट में रहेंगे। थॉट्स अलाइनमेंट में रहेंगे तो चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी, चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी तो हमेशा हार्ट चक्र बड़ा होगा, हमेशा हार्ट चक्र बड़ा होगा तो जो मैंने इसके पहले बोला वो सब होता रहेगा। समझ गए? और 50 हो गया। 50 हो गया। देखो मैं तो हंसती रहती हूँ चाहे कितना भी पेन हो ना हो। बोल ना पूनम। माँ आज फेस नहीं दिखाया आपने, मैं सुबह से देख रही कि आप कब दिखाओगे। कल रात को 1:30 बजे तक तूने मेरा फेस देखा। कल मैं आज तुम लोगों के एकादशी साथ ही थी सेशन में। नहीं आज फेस के 12 बजे हुए, कल तक ठीक था। सारे लोग वीडियो ऑफ रखते हैं तो कोई स्माइल कर रहा है कि नहीं किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके पास दांत है स्माइल कर लो बाबा। ठीक है। सो बेसिकली 63 हो गया ग्रुप एवरेज। हाँ स्माइल करो। मेरी आवाज ही काफी होनी चाहिए ना, चेहरे में क्या रखूं। ठीक है। सो इसलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग सारे स्टेप्स फॉलो करें जो हमें गाइड किया जा रहा है, उससे हमारा ही अच्छा होगा। हाँ हमारा हार्ट चक्र खुलने से हमारी ही लाइफ बेटर होगी, हम ही बचे हुए रहेंगे बाकी सारी चीजों से। आपके अंदर डिजीज्ड एनर्जी घुसने से पहले 2 बार सोचेगी, आपका किला बनेगा। आप अपना किला बना रहे हो, अपने आसपास फोर्ट बना रहे हो, और वो फोर्ट का दरवाजा आप तभी खुलता है जब हमारे रॉन्ग थॉट्स आते हैं, सैडनेस वाले थॉट्स आते हैं। इतना अपने आप को प्रिविलेज देना ही नहीं है कि हम दुखी हो। मैं सबको बहुत बिजी रखती हूँ हमारे ग्रुप में। आप लोगों का एम होना चाहिए कि पीएन ग्रुप में ज्वाइन करना। आप पीएन ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, आप इतना ज्यादा बिजी रहोगे कि खुद कब परेशान होने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा। एंड दैट इज व्हाट इट इज। व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द हायर कॉज, डिवाइन प्लान, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होना चाहिए कि हम परेशान हो। अगर आप में से कोई परेशान हो मतलब आपके पास बहुत ज्यादा फुर्सत है, प्लीज हमें कांटेक्ट करो, हम आपको कुछ काम देंगे। हमारे पास बहुत काम है। इतना फुर्सत नहीं देना है खुद को कि परेशान होकर बैठे, तकलीफ में बैठे, उदास हो, दुखी हो। नो। आज से ये प्रॉमिस करोगे सब लोग? मीना कुमारी बनना है क्या? कोई कुछ नहीं बोल रहा। ओ एक्चुअली फेस हिला रहा नहीं माँ। मुंडी हिला रहे।
पैपू करना है दिन भर। आपने कभी सोचा आपके साइड में जो इंसान रहता है या बैठा है वो बेचारा आपको कैसे झेलता होगा? कभी सोचा है? दया करो उस पे। सारा टाइम हम आप बोलते हैं तो सोच लेते हैं। हाँ आप अपना अगर हमेशा सड़े हुए आलू जैसे मुंह बना के घूमोगे, मेरा तो ये दुख रहा, मेरा तो वो परेशानी है, मेरी तो ये है, तो मेरा तो वो है, आपको जो देखता है उसके लिए कितना बड़ा टॉर्चर। कभी सोचा है? अरे भाई थोड़ा सा दया करो सब पे, सबको खुश रहने का हक है। वो आपको देख देख के दुखी हो क्या? माँ ब्लेसिंग दे दो, माँ ब्लेसिंग दे दो भी है ना। हाँ अरे ब्लेसिंग मैं ब्लेसिंग को क्या करूं? मेरे ब्लेसिंग से आप थोड़ा से 2 मिनट खिकी करोगे, फिर आप उसी अपने मैं और मेरी तन्हाइयां अक्सर ये बातें करते हैं। वो नहीं होता तो क्या होता, उसने ऐसा नहीं बोला होता तो क्या होता, है ना? ये कौन है? अमिताभ बच्चन वाले, ये वाले टाइप के मैं और मेरी तन्हाई वाले। सिलसिला मोड। हाँ सिलसिला, अच्छा नाम दिया। सिलसिला मोड में कौन रहता है? प्लीज मत टॉर्चर करो दूसरों को, दया करो। जितना दया करोगे दूसरों पे, आपको आपके ऊपर भी भगवान दया करेंगे। चल रहा आनंदी, तो तू कंटिन्यू कर, मैं और मेरी कार्टूनगिरी खत्म नहीं होगी। दैट इज व्हाट वी नीड। बहुत हम लोग को बहुत ऐसे, आप जो बोले ना किला बना के रखे हुए रहते हैं फोर्ट, तो वो चाहिए। हो गया सेशन। देयर वाज ओनली लास्ट में एंडिंग में द एसेंस ऑफ कृष्णाज नेम। आपने बोला था कि कृष्णा, उसीलिए आपने कृष्णा का नाम कृष्णा रखा था, मतलब बेटे का नाम कृष्णा रखा था। तो उसमें कृष्णा आके मस्त क्वेश्चन पूछ के भी गया था, आप कृष्णा बोल तो रहे हो लेकिन इंटेंशन आप मुझे बुला रहे हो ना, तो आप गोलक तक कैसे पहुंचोगे? वो उस टाइम पे इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा था। भैया आप म्यूट पे हो, आप कुछ बोल रहे हो। 2019 से भी पहले का था ना ये लाइव सेशन? 2017 का था। 19 का था। 19 हाँ मई 2019, एग्जैक्ट 2 years। 50 लोग आए थे और बाकी लोगों ने जूम से ज्वाइन किया था, तो मतलब 60-65 लोग थे, और अभी ऑलमोस्ट 60-65 है। तो आज हम लोगों ने जो किया वो ऑलमोस्ट सोच लीजिए 120 सोल्स के करीब करीब पार्टिसिपेशन, मतलब एनर्जी वाइज। इसीलिए ज्यादा एनर्जी आज थी। तो आज इन्होंने सेशन मिस किया, अगेन एन इम्पोर्टेंट चीज मिस की। कोई सेशन मिस मत किया करो आप। घर वालों को भी पकड़ पकड़ के लेकर आना, फिर बस बैठे रहे, बोलना समझे ना समझे बस बैठे रहे, वो क्लेंजिंग होती रहती है। ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन। किसी को कोई क्वेश्चन है? माँ एक ग्रुप में एक्सपीएस भी कर लें क्या? तो क्या चाहती है, अब सब बिस्तर लगा के सो जाए? पहले तू भी सो जाओगी। हाँ जब प्राची का प्लान है एसबीसी का पूरा एक सेट आज करवा देने के इधर ही। ऐसी संभव है के हम कर सकते हैं। नहीं, एक काम करो, अभी हरे कृष्णा महामंत्र करा लेते हैं वो वाला, और फिर वी एंड इट। तो पहले थैंक यू प्रेयर बोल देती हूँ मैं, कि नहीं, हरे कृष्णा मंत्र के बाद बोलती हूँ थैंक यू प्रेयर, दैट इज बेटर। हायर बीइंग्स रहेंगे तब तक। हाँ वो चला दीजिए, तो फिर वो एक माला सबके साथ हो जाएगा। सो एनर्जी वुड बी अगेन गुड। अनिता आप डाल रहे हो? और कोई भागेगा नहीं। 61 लोग, आप में से कोई भागो मत। ये 7 मिनट इम्पोर्टेंट है, जस्ट 7 मिनट। जहाँ इतने देर झेल लिया आप लोगों ने मुझे, और 7 मिनट झेल लीजिए। भैया आप शेयर कर रहे हैं ना? 9 टाइम, रिमेनिंग टाइम के हिसाब से अपने को लॉग इन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ऑडियो पॉज हो जाएगा। ऑडियो भी 9 मिनट 29 सेकंड्स का है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं।
Ma, can we all log back in? Just one last time. One last time. और फिर we can exit. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू और हायर बीइंग्स, थैंक यू और स्पिरिचुअल मास्टर्स, थैंक यू ऑल द ग्रेट वंस, थैंक यू फॉर ऑल द प्रोटेक्शन, all the help, all the knowledge provided to us. We thank you in full faith. So be it. I hope और किसी को कोई question नहीं है, and then Anandita can end the session. Thank you so much, Ma, for a wonderful session. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Thank you all. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you so much, ma'am.